No, Can you've I done a ask- lot of talking. Don't tell us what we're going to feel. Have you said thank you once? If Me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. It's going to be a very hard thing to do business like this. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. You're gambling with World War III. नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई हमारे इस YouTube चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन हम जानेंगे भाई इन दोनों भाई साहब के बीच में आखिर ऐसी क्या गर्मा गर्मी चल रही है और हमारे मार्केट पर इसका कैसा इंपैक्ट आ सकता है। शुरुआत में बता देता हूं भाई कि ऑफकोर्स नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये गर्मा गर्मी मतलब ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और अपन इसको सुनते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आखिर क्या क्या बातें कर रहे थे और कहाँ पर पूरा मामला गड़बड़ाया। No You're dictate. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. अब देखो दोस्तों, इस चीज़ के अंदर तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि किस प्रकार से ट्रंप ने जेलेंस्की की बेइज्जती करी। मतलब एक राष्ट्रपति को बुलाते हैं अपने घर में और इस प्रकार से बिहेवियर करना, मतलब जो गर्मी है इस माहौल के अंदर, ठीक है, पूरी मीडिया के सामने ऐसी हरकतें करना, भाई उस बंदे पर क्या प्रेशर आया होगा। मतलब उसकी गलती क्या थी कि वो अपने देश के लिए बोल रहा था, आखिर क्या बोला, कहाँ पर माहौल गड़बड़ाया। देखो भाई 45 मिनट की वार्ता थी, लेकिन गड़बड़ का कि लास्ट के 10 से 15 मिनट के अंदर कहाँ पर ये शुरुआत हुई, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 is Well, 2014. Yeah. So I was, he I killed. was not here. Yeah, but, exactly but right. yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. देखिए दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है कि जेलेंस्की का बोलना है कि सन 2014 के अंदर जब आपके राष्ट्रपति ओबामा जी थे, तब रशिया ने हमारे कई इलाकों पर कब्जा किया था, जैसे कि क्रीमिया। लेकिन उस टाइम पर कोई डिप्लोमेसी बीच में नहीं आई, तब कोई कुछ नहीं बोला। 2019 के अंदर हमारे और रशिया के बीच में समझौता करवाता है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने इनके बीच में समझौता करवाया था, सीजफायर करवाया था, प्रिजनर्स वगैरह छोड़ देंगे, सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन 2022 के अंदर रशिया इस समझौते को तोड़ देता है। तब कोई डिप्लोमेसी बीच में आई नहीं, तब तो कोई कुछ बोला नहीं। अब आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात यहां पर कर रहे हो, ये किसने बोला? जेलेंस्की ने। अब इस चीज का बुरा लग गया भाई साहब उपराष्ट्रपति जी को, जिनका नाम क्या है? जेडी वेंस। ऑफ कोर्स भाई ये ट्रंप के चमचे हैं, आप ऐसा बोलो, मतलब इनकी वो नहीं होती गाथा पर गाथा गो, इस प्रकार का माहौल है इनका। तो इनको लग गया उस चीज का बुरा कि यार एक छोटी कंट्री का राष्ट्रपति हमारे घर में आकर ऐसा बोलता है कि भाई मतलब हमको दिखा रहा है, हमें हमारी तरफ उंगली कर रहा है कि उस टाइम आपकी डिप्लोमेसी कौन सी थी और अब आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। तो इनका बोलना है कि भाई साहब मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ जिससे आपकी कंट्री बच सके। और इन्होंने ये भी बोला कि आप हमारे घर में आकर हमारी मीडिया के सामने जो चीज़ें बोल रहे हो, ये अपमानजनक रवैया है आपका। इस चीज़ का बुरा लगता है। ऑफकोर्स भाई बड़े लोग हैं, इनको तो बुरा लगेगा इन चीज़ों का। अब यहाँ पर देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जेलेंस्की भाई अपनी कंट्री के लिए बोलना कोई गलत नहीं। ऑफकोर्स बंदा कैसा भी होगा, एटलीस्ट मतलब अपने कंट्री के जो पॉलिटिशियन है उनकी तरह तो नहीं कि अपने देश के खिलाफ ही बोले। तो ऑफकोर्स भाई मैं इस चीज़ में सही बोलूँगा कि इस बंदे ने बहुत हिम्मत दिखाई। देन इसके बाद में जेलेंस्की इनकी बात को बीच में काटते हुए बोलते हैं कि देखो भाई मैं आपको कोई अपमान नहीं कर रहा, लेकिन मेन पॉइंट आप ये बताओ कि क्या आप कभी यूक्रेन आए हो? क्या आपने कभी उन चीज़ों को झेला जो हम झेल रहे हैं? आपने हमारी परेशानियों को समझा? क्योंकि आप कभी वहाँ पर आए नहीं। तब इन्होंने बोला कि देखो ऑफकोर्स मैं वहाँ नहीं आया, लेकिन मीडिया में फोटोज़ में मैंने वो सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और बोली
कि बस साहब मैंने ये चीज़ें मीडिया में तो देखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर आके और आप अपमानजनक रवैया दिखाओ। तो यहाँ पर जेलेंस्की बोलते हैं देखो भाई साहब बात ऐसी है कि सब ठीक होगा, लेकिन है ना युद्ध का जो माहौल रहता है ना उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, युद्ध के माहौल में ऐसी चीज़ें होती है, कभी अमेरिका को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बस ये चीज़ सबसे बड़ी गड़बड़ वाली हो गई कि इन्होंने बोल दिया कि अमेरिका को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तब से पूरा मैटर गड़बड़ा गया और यहीं से ट्रंप बीच में कूद जाते हैं। Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet. You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. You and your voted men for are brave, but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something. Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Say thank you. अब देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ हुआ क्या है कि ट्रम्प साहब बीच में तो कूद गए, लेकिन इनका बोलना है कि देखो भाई साहब आप कोई ढंग की कंडीशन में हो नहीं, ठीक है, तो आप ऐसी बातें मत करो, आप युद्ध नहीं दे सकते। तो जेलेंस्की ने बोला कि देखो भाई साहब हम शुरू से एक लंबा टाइम पीरियड हमें हो चुका है, ऑफकोर्स हम बहुत साहस के साथ लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ हम खड़े हैं और 3 साल से हम अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। अब ये अकेले की बात आ गई तो फिर से ट्रम्प बीच में कूदे कि देखो भाई साहब ऐसी बात है कि हमारा जो मूर्ख राष्ट्रपति वो बाइडेन की बात कर रहे थे कि अगर वो आपको $350 बिलियन नहीं देता तो आप इस युद्ध को शायद 2 हफ्ते तक भी, मतलब 2 हफ्ते भी नहीं खड़े रह पाते। तो जेलेंस्की ने बोला कि 2 हफ्ते तो बहुत बड़ी बात है, हम तो 2 दिन भी ना रह पाते, बस आप राजी रहो, मतलब कुल मिलाकर हम तो नहीं जीत पाते। लेकिन इन चीज़ों को समझे कि इस प्रकार ऐसा बोलना पूरी मीडिया के सामने, उनको हाथ लगाकर बोलना, ऊपर से मुंह फेर लेना, तो ये चीज़ें ना जियोपॉलिटिक्स को पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बहुत बदल देती है। मतलब जहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति, जिनको ये मूर्ख राष्ट्रपति बोल रहे थे, भाई वो किसी और ने तो चुना नहीं, ठीक है, वहीं की जनता ने चुना, तो आप किसको मूर्ख बोल रहे हो, वो एक अलग बात है। देन एक पॉइंट ये भी है कि वहाँ के राष्ट्रपति पहले इनको सपोर्ट करते हैं, मतलब अमेरिका ही इनको सपोर्ट करा, भाई वहाँ की गवर्नमेंट वहीं की थी ना, भाई सपोर्ट कौन करेगा, अमेरिका इनको सपोर्ट करा था कि जाओ आप आगे बढ़ो, हम आपको $350 बिलियन देते हैं, आपको हथियार देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, लड़ो। एक कंट्री उन चीज़ों को लेकर युद्ध में इतना घुस चुकी है, मतलब 2-3 साल बिता चुके हैं, ठीक है, युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा पूरा डीप जा चुके। अब उस देश की पॉलिटिक्स बदल जाती है, राष्ट्रपति चेंज हो जाता है, अब वो कंट्री पीछे हट जाती है कि हम आपका साथ नहीं देंगे, मतलब ट्रम्प साथ नहीं दे रहे। अरे भाई साहब इसके चक्कर में एक कंट्री तबाह हो सकती है। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि यूरोप के बहुत सी कंट्रीज अब इनका साथ दे रही है, जो मतलब ये जो मुद्दा हुआ है इसके बाद मैं आपको अभी ट्विटर हैंडल पर भी लेके चलूंगा, जिसका अब नाम एक्स हो चुका है, तो वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें चल रही है। देन इतना ही नहीं, इस पूरे मैटर के बीच में ये जो बात चल रही थी, यहीं पर ही उपराष्ट्रपति भी बीच में कूदता है और वो बोलता है कि क्या तुमने पूरी बात के बीच में कहीं भी ट्रम्प को थैंक यू बोला? किस चीज़ के लिए बोले भाई? मतलब आप युद्ध रुकवा रहे हो उसके लिए थैंक यू बोले? ऑफकोर्स ठीक है भाई, बोल देते हैं, लेकिन आपकी कौन सी डिप्लोमेसी भाई? पहले भी भूल चुके हो क्या आप? मतलब इन्होंने बताया ना 2014, 19, 22 वाली बात, तो कौन सी डिप्लोमेसी, मतलब कौन सी चीज़, किसके लिए थैंक यू बोले? लेकिन इन्होंने बोला खैर यार, मतलब देखो ऑफकोर्स इतना दिमाग नहीं लगाया इस बंदे ने और क्लियर बोला कि चलो थैंक यू। कई बार ये थैंक यू बोलता रहा और इनके ट्विटर हैंडल पे भी लेके चलूंगा कि जेलेंस्की ने और क्या क्या चीज़ें करी ट्विटर पर आने के बाद, सभी को भर भर के थैंक यू बोला, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेन पॉइंट, पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से बदल रही है, इन चीज़ों को भी देखना, और यूरोप अब किस प्रकार से साथ दे रहा है जेलेंस्की का इन चीज़ों। ऑफकोर्स वो ट्विटर हैंडल पर आकर बस इनको बोल रहे हैं कि आप खड़े रहो, सास के साथ खड़े रहो, हम आपके साथ हैं। ऑफकोर्स वो उन्होंने कहीं भी हथियार देने की बात ऐसा वैसा कुछ करा नहीं, लेकिन मेन पॉइंट ये अब ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर कि यूरोप वर्सेस अमेरिका, जहाँ पर कभी ये साथ थे अब ये अलग अलग हो सकते हैं। ऑफकोर्स भाई पावर किसी एक के हाथ में रहती नहीं है, कोई टाइम था फ्रांस का था, जर्मन का था, आज अमेरिका का है। लेकिन यार ये इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है, किसी एक कंट्री के पास पूरी पावर ना तो फ्यूचर में रहने वाली, ना ट्रंप कोई आजीवन राष्ट्रपति रहने वाले, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए दोस्तों, जेलेंस्की के ट्विटर हैंडल पर जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्या पोस्ट करा है अपने ट्विटर हैंडल पर। उनका बोलना है कि ये जो मीटिंग थी बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल थी, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर जो हुआ आज, लेकिन इसके अंदर है ना जेलेंस्की बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मतलब उनका बोलना है कि जेलेंस्की बिल्कुल भी तैयार नहीं है युद्ध विराम को लेकर, लेकिन अमेरिका पीस चाहता है, ये विराम चाहता है, ये चाहता है कि युद्ध रुक जाए। ऑफकोर्स भाई ये जो अब मसीहा बनता घूम रहा है, इनका यही बोलना है, और ये भी बोलना है कि ही कैन कम बैक व्हेन ही इज़ रेडी फॉर पीस। मतलब वो वापस अमेरिका तब आ सकते हैं जब वो पीस के लिए, मतलब समझौते के लिए, शांति के लिए तैयार हो जाए।
अब देखो दोस्तों एक बार जेलेंस्की के ट्विटर हैंडल को, मतलब इन्होंने हर एक को, मतलब जिन्होंने भी इनको सपोर्ट करा, इनसे रिलेटेड कोई भी बात करी, कोई भी ट्वीट करा, उन सभी को थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मतलब सभी को दबा दबा कर भर भर कर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। जब से उपराष्ट्रपति ने बोला कि आप थैंक यू नहीं बोले ना, तो ये लो भाई सभी को थैंक यू। इन्होंने यहाँ तक अमेरिका को भी थैंक यू बोला, ऑफकोर्स ट्रंप को नहीं बोला, लेकिन सभी को थैंक यू इन्होंने बोला। देखिए भाई इन चीज़ों को अब लोग किस प्रकार से देखते हैं, ऑफकोर्स इस मैटर को सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट मुझे एक चीज़ अच्छी लगी यहाँ पर जेलेंस्की की कि यार कंट्री के लिए तो ये बंदा बोला। आज अपने देश में देखते हैं बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन है जो अपने मतलब देश के खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन भाई कैसा भी हो अपने देश के लिए तो जरूर बोला। देन दूसरी पॉइंट एक ये भी हो सकता है कि इस पूरे मैटर में जो है कि पुतिन को बहुत फायदा हुआ। अब इंडिया में पुतिन को इस प्रकार से देखते हैं कि यार हमारे बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया, जो कि दिया, ऑफकोर्स हम उनके फुल सपोर्टेड है, मतलब वो पूरा सपोर्ट करते हैं उनको, इसलिए भी थोड़ा इधर नहीं बोला जाता। लेकिन मेन पॉइंट अगर मैं केवल इन दो व्यू में देखता हूँ तो जेलेंस्की की भाई मुझे तो कोई दिक्कत लगी नहीं। अब बात करते हैं मार्केट के इम्पैक्ट के बारे में, तो ऑफकोर्स भाई जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स पूरी बदल रही है, ठीक है, वो तो पूरा माहौल ही खराब होने वाला है, ठीक है। मतलब एक तो ये युद्ध और बढ़ सकता है, मतलब कहाँ पर जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि जेलेंस्की अब अकेले हो चुके हैं, मतलब यूक्रेन अकेला पड़ चुका है। कहाँ क्या होगा, क्या रुख होगा, क्या यूरोप साथ देगा, यूरोप साथ देता है तो यूरोप वर्सेस अमेरिका भी हो सकता है, मतलब बहुत सी चीज़ें अब हो सकती है। देन इसके अलावा अब आप यहाँ पर ये मिनरल वाला मैटर तो भूल जाओ, मतलब ये जो समझौता होने वाला था अमेरिका और यूक्रेन के बीच का, ये भी नहीं होने वाला। देखिए अमेरिका भाई ये मतलब कोई कम नहीं है, ठीक है, इनको पता था कि यार हमने $350 बिलियन का सपोर्ट करा, तो ये $500 बिलियन का इनसे मिनरल निकालने वाले थे, ये समझौता होने वाला था। ऑफकोर्स ये नहीं हुआ, तो भाई अब देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होती है। सोमवार के दिन हमारा मार्केट ओपन होगा, कैसा रिएक्शन आता है, अमेरिकन मार्केट भी इससे रिलेटेड कैसा रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ये एग्रीमेंट होता, अगर ये समझौता होता तो उनको भी बहुत फायदा होता इससे, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो देखते हैं भाई आने वाले समय में कैसा रिएक्शन रहता है, और 2-3 दिन और देखते हैं भाई, इनसे रिलेटेड और भी बहुत से अपडेट आने बाकी है और आएंगे, ऑफकोर्स भाई जरूर आएंगे। जियो पॉलिटिक्स कुछ इसी प्रकार से काम करती है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन भी भाई कमेंट में रख सकते हो, मेरा जो था मैंने बता दिया, मुझे क्यों इस चीज़ों में क्या चीज़ें सही लगी जेलेंस्की की, कि भाई उस बंदे ने अपने कंट्री के लिए बोला, एटलीस्ट ये मुझे थोड़ा ठीक लगा और क्लियर बोला कि यार आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो, मतलब आपने ही तो पहले समझौता कराया था, तो कौन सी डिप्लोमेसी, कौन सी कूटनीति। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।